कोई बात नहीं. Now, so these examples should make you very clear. Now there will be more confusing when we will bring the heats, temperature. Then there will be confusing. But you should make it very clear कि when a question is asked, a person at the high altitude, not latitude. Remember, altitude. High altitude मतलब height. And a person, one is standing at the lower latitude. Which one of the following will experience more atmospheric pressure? The answer will be the person who is at the lower altitude, not latitude. Are you clear? This should be clear. This diagram clearly shows that the person B is having a coulomb of air, the distance, and the person A is having this much. Are you clear about? यहाँ कोई problem नहीं. Now the problem is when suppose these are the two places, B में ही है, ये भी यहाँ पे C है, ठीक है. The here at C there is a warm air and here cold air. Now if I ask you which of the three, या तो which of these two, we will take these two example. Which one of these two B will experience more pressure, atmospheric pressure, and other? आप लोग बस ये दो ही कंसेप्ट है, ये हो गया बस. आपका कहने का मतलब है कि क्या बोला है, यू आर कंफ्यूज ना. डायग्राम को देखा है तो आपको लग रहा है, डायग्राम को देख के लगा है कि प्रेशर तो यहीं ज़्यादा होना चाहिए. फिर आपका क्या कंफ्यूजन है? सुना था वो गलती सुना है. आंसर वही, वो गलती सुना है. नाउ देयर इज ए वन क्वेश्चन जो रेगुलरली आस्क होता है, व्हाई डू व्हेन वी गो अप, व्हाई डू माउंटेनियर ब्लीड्स, बोल के सुना होगा ये क्वेश्चन. आपको बोलते हैं बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर ना, बिकॉज ऑफ द एक्सेट्रा बोल के क्वेश्चन आता है. नाउ व्हाट हैपन, आवर बॉडी इज एडजस्टेड विद द लोअर एटमोस्फियर. मतलब प्लेन एरिया के लिए हम लोग एडजस्टेड है, या तो लो एल्टीट्यूड आवर बॉडी इज एडजस्टेड मीन्स आवर इंटरनल बॉडी ऑल्सो एक्सर्टेड प्रेशर. दैट इंटरनल pressure is balanced by the external pressure, external atmospheric pressure. Getting my point? Now what happened when we go up to higher altitude? Now the exterior atmospheric become low and low. Getting my point? And our internal pressure become high and high. है कि नहीं? Therefore हमारा जहाँ से परमेबल, जहाँ से थोड़ा पतला वाला जैसे कि नाक हो गया, कान हो गया, वहाँ से ब्लड निकलना शुरू होता है, क्योंकि अंदर से प्रेशर ज़्यादा दे रहा है. नहीं तो नॉर्मल में आपका प्रेशर दोनों का बराबर होना चाहिए, तब हम लोग का ब्लड नहीं निकलेगा. लेकिन जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो एक्सटीरियर प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर बिकम वेरी लो एंड आवर इंटरनल प्रेशर बिकम वेरी हाई, and therefore we start breathing. That is the answer. Now more one question और एक है कि हैव यू एवर विजिटेड तवांग? कौन गया तवांग? गया है, आप गया है. नाउ इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व, अगर आप तवांग जाने से पहले जो आप बालकपुंग वगैरह ना या आसाम एरिया से आपने एक चिप्स खरीदा, चिप लेस वगैरह, वो अगर देखिएगा तो ऐसे है, मतलब हल्का फुल्का है. जब आप उसको ले जाके आप नहीं खाया है अगर, और आप ले जा रहा है और तावांग का सीला टॉप वगैरह में पहुंचने के बाद इफ़ यू सी दी चिप, वो चिप्स क्या होगा, इससे फूल जाएगा एकदम, ऐसे प्रेशर हो जाएगा, या तो वो फट जाएगा. देखा होगा आप. ये क्यों होता है? बिकॉज द चिप वाज मैन्युफैक्चर एट द आसाम एरिया ना, वेयर द एटमोस्फेरिक प्रेशर and the internal pressure of the chip was exactly balanced and manufactured. But when we go to the higher altitude, the internal pressure of the chips will remain same, but the external atmospheric become very low, so therefore it start expanding and in many cases it explode. ये आपको क्लियर कर दिया. तो वो जो सुना था वो गलत है, ठीक है, हम जो बोला है वो सही है. आर यू क्लियर अबाउट दिस? नाउ दिस इज ओवर. हाँ, द सेकेंड इज योर दिस वन, द सेम latitude but different air condition.
one is warmer and the one is cooler. Now what happen if the air is warm over here, this pack of air is always in the pack, this pack of air become warmer. When it become warmer, the velocity increases, velocity बोलता है, volume increases. When volume increases, its weight decreases. Are you clear about this? बड़ा हो जाएगा, decrease हो जाएगा as compared to the other surrounding air. तो therefore it start rising up ना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जब अगरबत्ती जलाता है या आप जो आग जलाता है तो उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं ऐसे करके नीचे तो नहीं जाता है ना. कभी आप धुआं को ऐसे नीचे जाते हुए देखा है? हाँ, अगर धुआं बहुत कंसनट्रेटेड है, हाईली कंसनट्रेटेड है, बोलने से ये थोड़ा इधर उधर चला जाता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन यू बर्न अगरबत्ती ना और फायर, this carbon dioxide or the air will rise up. Why it is rising up? Because of the heat, that pack of air that become very lighter as compared to the surrounding air. So therefore it rise up. Are you clear about this? When it rise up, then when it is rising up, it simply means that there will be a no pressure on sea. यहाँ पे वो प्रेशर नहीं होगा ना. अगर एयर राइज कर रहा है तो यानी कि एक्चुअली तो ऐसे होकर बैठना चाहिए, लेकिन एयर इज राइजिंग अप, इट मीन्स यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग ए प्रेशर. तो देयरफॉर दिस इज ए लो प्रेशर एरिया. जहाँ पे गर्मी होगा हमेशा लो प्रेशर होगा. नाउ यहाँ ठंडा है, एयर सराउंडिंग हियर ऑल्सो बिकम कोल्ड. ऊपर राइज होगा नहीं है, वो आपका ऊपर में सीधा यहीं पे अटक के बैठेगा और ऊपर भी और आपका ऊपर में होगा. So therefore it will be a high pressure area. So remember, wherever there is a warm air, the air become warmer, it become lighter, volume increase and start ascending. Getting my point? And wherever the air is cold, even air is cooled, after going up, it is cooled, then it will come down. जैसे कि for example, if this air goes up, after going to certain distance, it will cool down. Getting my point? ठंडा हो जाएगा. अगर बारिश वारिश देने का बाद भी ठंडा हो जाएगा तो it will come down at some place. कहीं ना कहीं वो नीचे आना पड़ेगा, और जहाँ पे वो नीचे आ रहा है वो जगह में क्या होगा? हाई प्रेशर होगा. आ रहा है मतलब हाई प्रेशर होगा, उतरा होगा तो लो प्रेशर. और जहाँ एयर हमेशा डिसेंड करता है तो देयर विल बी नो क्लाउड फॉर्मेशन. गेटिंग माई पॉइंट? एंड दिस एरिया वेयर द एयर डिसेंट, देयर विल ऑलवेज ए डेजर्ट फॉर्मेशन. वहीं पे डेजर्ट होगा आपका, वहीं पे बारिश नहीं होगा, वहीं पे एरिडिटी ज़्यादा होगा, ड्राइनेस ज़्यादा होगा. और जहाँ एयर राइज करेगा क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, बारिश करेगा. जहाँ एयर राइज करेगा वहाँ पे आपका बारिश भी होगा. आर यू क्लियर अबाउट दिस? दिस इज बिकॉज द हाईएस्ट इंसुलेशन इक्वेटोरियल वाला एरिया, वहाँ गर्मी ज़्यादा होता है, एयर राइज होता है, और इक्वेटोरियल एरिया में दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश भी होता है. और इक्वेटोरियल एरिया का बाद भी वो जब एयर डाइवर्ट होके 25 to 30 ना लेटीट्यूड में जब पहुंच जाता है तो वो एयर नीचे डिसेंड कर रहा होता है, तो वो वाला एरिया इज ए डेजर्ट एरिया. देयर यू विल फाइंड डेजर्ट. वहाँ पे बारिश नहीं होता, एरिडिटी ज़्यादा होता है. आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो दिस पॉइंट इज क्लियर. नाउ लेट इट, अभी इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता है. नाउ ये तो क्लियर हो गया. नाउ इफ दिस इज ये हो गया दिस पॉइंट. इफ इट इज वार्म कब होगा? से फॉर एग्जांपल इंसुलेशन इज कमिंग, इंसुलेशन हीट कर रहा है, यहाँ का पैक ऑफ एयर को गर्म किया है, इट विल राइज अप. एंड एयर डज नॉट राइज अप लाइक दिस. एयर ऐसे कभी राइज नहीं होता है. एयर ऑलवेज राइज इन ए सर्कुलर मोशन, ऊपर में सर्कुलर होके जाता है हमेशा. ठीक है, बिकॉज आवर अर्थ इज रोटेटिंग. इन ए रोटेटिंग अर्थ द एयर ऑलवेज गो अप इन ए सर्कुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोनिक कंडीशन. एयर राइजिंग मीन्स साइक्लोनिक कंडीशन. ठीक है. नाउ हियर इफ एयर इज राइजिंग अप देयर विल बी ए काइंड ऑफ द वैक्यूम ओवर हियर. वैक्यूम ओवर हियर होगा कि नहीं होगा? नाउ दिस वैक्यूम नीड टू बी फिल्ड अप by
कूलर एयर, तो ठंडा वाला आसपास का ठंडा वाला तो आना पड़ेगा। तो देयरफॉर द एयर फ्रॉम ऑल साइड, फ्रॉम एवरीवेयर, इट विल ट्राई टू कम इन दिस वैक्यूम एरिया एंड दिस इज नोन एज योर विंड। इसको ही हम लोग क्या बोलता है, विंड्स। आर यू क्लियर अबाउट दिस? नाउ ये कहाँ से आ रहा है, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहीं से तो आएगा। जैसे कि इन दिस केस यहाँ पे एयर इज डिसेंडिंग, यहाँ एयर इज राइजिंग अप। तो ये जब डिसेंड हो रहा है तो मिट्टी के अंदर तो नहीं घुसेगा ना एयर, इट हैज़ टू बी डिसिपेटेड इन ऑल डायरेक्शन, ऐसे जाना पड़ेगा। और ये कहाँ जाएगा, जहाँ लो प्रेशर होगा। अभी यहाँ लो प्रेशर है तो एयर यहीं पे आ जाएगा बोर फिर के, ये देयरफॉर फॉर द मूवमेंट ऑफ द एयर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर शुड ऑलवेज बी प्रेजेंस ऑफ द टू प्रेशर ग्रेडियंट होना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर होना पड़ेगा। एक हाई प्रेशर में होना पड़ेगा, एक लो प्रेशर में होने का, देन ओनली देन द एयर विल स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्टेन डायरेक्शन, वी कॉल इट सब विंड। नहीं तो आपको एयर नहीं विंड नहीं करेगा, ठीक है। ठंडा दिन का समय में ठंडा दिन का समय में मेरा जो घर है वो लोअर पोतुम में है, तिक जू से ऊपर में है। यहाँ पे माई एरिया इज़ फेमस फॉर वेरी विंड ना, हवा लगता है जोर जोर से। Now reason is that during the winter season my area is a top, because of which the air cool down very easily, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और ईटानगर का ये वाला टाउन एरिया तो because of the so many urbanization buildings ना, हीट आइलैंड्स बोलता है ऐसे वाला एरिया जहाँ बिल्डिंग सब बहुत ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह रहता है, हीट आइलैंड बोलता है। यहाँ पे दिन में थोड़ा भी धूप देने से भी बहुत देरी तक इसको गर्मी को पकड़ के रखता है। तो ये वाला एरिया जो चंदन नगर, ये वाला एरिया से हवा जो ऊपर उठ जाता है, तो मेरा वहाँ से ठंडा ठंडा हवा ऐसे करके इस तरफ में आता है, ठीक है। तो मेरा वहाँ पे इतना हवा आता है, ठंडा ठंडा हवा, तो वो एक रीज़न है। एनीवे, तो आर यू क्लियर? सो हाँ बोलो। ANC इसीलिए बोला इसमें अभी यू कैन नॉट कंपेयर। सेम एल्टीट्यूड में है तो ये है, लेकिन अगर इसमें आप ज़्यादा गर्म कर दिया तो इसमें तो प्रेशर ही नहीं होगा ना, ठीक है। इसीलिए हम B और C को कंपेयर करेगा, A कैन नॉट बी कंपेयर्ड, वो अलग ही हो गया, है कि नहीं ना। जैसे कि दो ज्योग्राफी टीचर को आप कंपेयर करेगा, विच वन इज़ द बेटर बोल के, फिर आप एक तो हिस्ट्री टीचर को लाएगा, इसके बाद करेगा तो वो पैरामीटर नहीं बैठेगा। आई हैव टू कंपेयर विद मेरा जो उससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये दोनों बराबर फुटिंग में है और ये थोड़ा अलग फुटिंग में है, इसका अलग ही बात हो गया ना। ये करेगा तो लेटीट्यूड में करेगा, सेम लेटीट्यूड। तो दिस इज द ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको समझ में आ गया ना। द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10132 समथिंग मिली बार होता है, ठीक है। वो हम लोग लिखिएगा। इसके बाद में हम लोग ये कंसेप्ट को यूज़ करते हुए, जहाँ गर्म होगा हवा ऊपर जाएगा, जहाँ ऊपर जाएगा तो ठंडा होगा। और वो देखो ऊपर जाने के बाद में हवा ठंडा हो जाता है, लेकिन ठंडा होकर वो यहाँ नीचे नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है बताओ? वापस वही से नीचे क्यों नहीं आ सकता है? व्हाट कुड बी द रीज़न? एयर ऊपर जाने के बाद में, जनरली ऊपर जाने के बाद ठंडा होकर बारिश देने के बाद में ये डायरेक्शन में चला जाता है वो, और ऊपर भी नहीं जाता है ज़्यादा, 18-16 किलोमीटर का ऊपर भी नहीं जा सकता है वो। यहाँ तो इस तरफ चला जाता है या तो इस तरफ, वो नीचे वापस वही से नहीं आता है। तो आपका दिमाग में एक क्वेश्चन तो होगा ना कि उधर गया फिर वापस क्यों नहीं आ रहा है? वो तो क्वेश्चन हो सकता है ना, नहीं है तो अलग बात है, लेकिन हम ही पूछ दे रहा है, हो सकता है कि नहीं सकता है। तो व्हाट कुड बी द रीज़न? द रीज़न इज़ दैट बिकॉज इफ़ कॉन्टीन्यूस इंसुलेशन अगर नहीं मिल रहा है तब वापस आ भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इक्वेटोरियल एरिया लोग में गर्मी रहता है, जिसका कारण से यहाँ से कंटिन्यू एयर राइज हो रहा है। जब एयर राइज होगा तो उसको यहाँ पे आने ही नहीं देगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी बारिश देने के बाद ये हल्का हो जाता है। तो हल्का होकर यहाँ से एयर राइज हो रहा है, मतलब हवा फेंकते जा रहा है, तो वो वापस नीचे आ ही नहीं सकता है। ऊपर क्यों नहीं जा सकता है बोलेगा तो उसका एनर्जी नहीं बाकी है। जितना स्पीड से ऊपर जा रहा था, स्पीड खत्म हो गया तो और ऊपर नहीं जा सकता है, ट्रोपोपोस्ट से ऊपर जा नहीं सकता है। इसके बाद उसको बचाए, या तो यहाँ जाओ या तो यहाँ जाओ। फॉर एग्जाम्पल
ग्लोब लेके आता राम लेके आए ग्लोब ये इसमें है. दिस इज योर इक्वेटर ना. I will take the example of the equator. Now when the insolation is maximum vertical at the equator, the air will rise up like this. हाँ, अब फिर ये मत सोचना कि ऐसे होना है. Don't be like that. ठीक है, वो confusion है. Don't what call look on that way. Air will rise up this way. ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा. It cannot come down because continuously air is rising. So therefore it cannot come down. It will not go further because no energy is left. इसके बाद में यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता है. क्यों? क्योंकि हर जगह से तो ये हवा उठेगा ना. यहाँ भी नहीं जा सके, यहाँ भी नहीं जा. ओनली लेफ्ट इज यहाँ जाओ और यहाँ जाओ. दिस पॉइंट क्लियर. ये एकदम कंसेप्चुअल है ड्राइंग बनाने के लिए, नहीं तो आपको कंफ्यूज होगा कहाँ जाना है बोल के. फर्स्ट इंसुलेशन हीट, द एयर विल राइज अप. After rising up, it will cool down, condense. It may give the rainfall. Okay, depending on many factors. After this, it become lighter. Now it's cooled down. Now it has to come down. Now at the same place it cannot come down because continuous air is rising. Okay, it cannot go further because no energy is left. Okay, now and it cannot go in this direction because all over here at the equator the air is rising. Only left area is either you go to the north or either you go to the south. ये समझ में आ गया. बस ये तीन कंसेप्ट समझ गया आपको. ठीक है, विंड सिस्टम को कर लेगा आराम से. फर्स्ट वार्म अप एयर का कंसेप्ट, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ना, यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा, ऊपर नहीं जाता और साइड में नहीं जा सकता. कंसेप्ट क्लियर. ठीक है. सो फर्स्ट राइट डाउन फ्यू कुछ लिख लो एटमॉस्फेयर में तो एक प्रेशर बोलता है ना. नंबर से उसका मिली बार में, प्रेशर मतलब बार में मेज़र करेगा बस. नेक्स्ट राइट डाउन फुल स्टॉप के बाद. नाउ गिव ए हेडिंग प्रेशर बेल्ट्स. इसको हम लोग विंड में लिखेंगे, बाकी का चीज़ को आगे प्रेशर बेल्ट को थोड़ा देख लेगा. To save the time, you can draw the diagram with me, हाँ. And इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. I will draw two diagram. ठीक है, for making more clear. एक हम डायग्राम ये बना रहा है. Now listen careful. This is 0 degree equator. What I did, equator को ऐसे खोल दिया, 0 डिग्री इक्वेटर. हाँ, इसके बाद दिस इज 10 डिग्री. इसको हम नॉर्थ ले लेंगे, इसको साउथ ले लेगा. 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ. इसको इमेजिन कर पा रहा है. जस्ट आई एम ओपन द ग्लोब. ठीक है, इसके बाद हमको जो जो ज़रूरत है उसको हम डालेगा. जैसे कि हमको ज़रूरत है 25 डिग्री टू 30 डिग्री हमको ज़रूरत है. देन हमको ज़रूरत है 60 टू 65 डिग्री. देन हमको ज़रूरत है 80 टू 90, लेकिन हम 90 डिग्री लिख देगा, 80 को ज़रूरत नहीं लिखने के लिए. ठीक है. देन यहाँ पर भी 25 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री साउथ. देन 60 टू 65 डिग्री साउथ. देन आई राइट इट से 90 डिग्री. ठीक है. नाउ दिस एरिया 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ of the equator is known as your equatorial area. Equatorial area means these are the region of the equatorial. Na? The maximum insolation, vertical insolation will receive over here throughout the year. Na? हाँ, at a certain time, say for example in the summer, extreme summer season, June, July, the vertical insolation will fall on this area. And in the winter season, the vertical insolation will be fall over here. But शिफ्ट तो करना पड़ेगा, यहीं से पास होना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड आसाम, दिस इज कॉल्ड दापोरिजो, दिस इज कॉल्ड ईटानगर. या नहीं, वो नहीं होगा. दिस इज पासीघाट, दिस इज आसाम, दिस इज ईटानगर.
तो पासीघाट पीपल ऑलवेज हैव टू ट्रेवल थ्रू द आसाम ना, दे कैन नॉट, रास्ता नहीं है, यहीं से गुजरना पड़ेगा। आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो देयर फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ द मनी या टैक्स इसको मिलेगा ना, आते समय में भी देखे जाओ जाते समय में भी देखे जाओ गुड एग्जाम्पल वो कभी कभी मेरे दिमाग में कहाँ से एग्जाम्पल आ जाता है, क्योंकि अभी जस्ट हम लखीमपुर से अभी जस्ट पहुँचा है, मेरा पैन कार्ड बनाने गया था, तो हमें गाड़ी चला चला के ये सब देखा है ना, चाहूँ तो वहीं जाना पड़ेगा, तो आई जस्ट इमेजिन, तो इसलिए अभी सीधा आसाम का आ गया। एनीवे तो मैक्सिमम इंसुलेशन विल बी रिसीव हियर। तो प्रेशर क्या होगा? इट विल बी ए लो प्रेशर हियर, द लो प्रेशर इंसुलेशन मिल रहा है आपको, ठीक है। देयर फॉर एयर विल राइज ना, द एयर विल स्टार्ट राइजिंग अप, एयर राइज होगी इस तरह से, द एयर राइज अप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देयर फॉर दिस एरिया विल बी ए लो प्रेशर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर रीचिंग टू सर्टेन हाइट it will form cloud and it will give precipitation बारिश दे देगा। आगे देख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा जगह, देख लो आगे, कंप्लीट कर लो। प्रिसिपिटेशन दे देगा। नाउ द एयर ओवर हियर बिकम कूल, ठंडा हो गया। नाउ इट हैव टू कम डाउन, नीचे आना पड़ेगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट कैन नॉट कम डाउन हियर। It is because the hot air is continuously rising up. It will push the above air. Therefore, he have no choice. He have to go in this direction. ऊपर नहीं जा सकता, यहीं जाना पड़ेगा, because I told you ये air rise हो गया, ये इस तरफ नहीं जा सकता, इस तरफ नहीं जा सकता, because everywhere the air is rising. तो एक ही चॉइस है, या नॉर्थ जाओ या तो साउथ जाओ। तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ कौन है? नॉर्थ ये है और साउथ ये है, ठीक है। तो therefore air will go like this, इस तरह से जाएगा, या इस तरह से जाएगा ना। आफ्टर गोइंग टू सर्टेन डिस्टेंस वो क्या करेगा? नीचे आना शुरू करेगा, धीरे धीरे करेगा। तो इट इज़ कमिंग डाउन, और कमिंग कहाँ पे डाउन हो रहा है? इट इज़ 25 to 30 के बीच में, 25 to 30 के बीच में, 25 to 30 के बीच में, यहाँ पे एयर इज डिसेंडिंग, एयर इज डिसेंडिंग। आर यू क्लियर? सो देयरफॉर यहाँ में क्या प्रेशर होगा? इट विल बी ए हाई प्रेशर एरिया। नाउ आफ्टर हीटिंग द अर्थ सरफेस, अर्थ को करने के बाद वो कहाँ जाएगा? अर्थ के अंदर तो नहीं घुसेगा ना, वो साइड में जाना पड़ेगा, और साइड में कहाँ जाएगा? लो प्रेशर एरिया को चुनेगा। तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया यहाँ पर है, तो वन ब्रांच विल गो इन दिस डायरेक्शन, ऐसे जाएगा, ऐसे जब जाएगा, ऐसे जाके ऐसे सब नहीं जाता है कभी भी, ऐसे जाके ऐसा हो जाएगा ना। तो वन ब्रांच विल इन दिस डायरेक्शन एंड वन ब्रांच विल गो इन दिस डायरेक्शन। आगे इसको बना लेगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अभी के लिए रखते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या हुआ है? 90 डिग्री इज द एरिया which is extremely cold, very cold. There is no chance the air will rise. In fact, the air will always descend. It will always come down, because air cooled, it down, come down. Air cooled, come down. So here at the 90 degree, the air will start coming down. नीचे की ओर आएगा, ठीक है। Now what will be the pressure over here? It will be a high pressure center. Now after coming down, it has to again divert in the two way. दो डायरेक्शन से फिर जाना पड़ेगा। तो देयरफॉर इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। एक तो वहाँ चला जाएगा, यहाँ नहीं दिखा सकता है, दूसरा डायग्राम में उसको दिखाएगा। अभी यहाँ जब आने के बाद में, नाउ हियर द टू एयर मीट, एक दूसरे को मीट करता है। वन इज कोल्ड, वेरी कोल्ड, वन इज वार्म, थोड़ा वार्म है एज कंपेयर टू दिस। व्हेन द कोल्ड एंड वार्म हियर मीट्स, ठीक है,
व्हेन कोल्ड एंड वार्म एयर मीट्स द कोल्डर एयर ऑलवेज लिव द वार्मर एयर। ऊपर दोनों टकरा के तो नीचे नहीं जा सकेगा ना मिट्टी के अंदर, तो बेसिकली दोनों टकरा के ऊपर जाता है, ठीक है। जहाँ पे दोनों मिल रहा है वी कॉल इट फ्रंटल। जहाँ दोनों मिल रहा है तो एयर भी मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा, मिक्सअप नहीं होता है। एयर मिलके फ्रंटल क्रिएट करके एक दूसरा को घुमा देगा, फिर ऐसे घूम के ऊपर चला जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा हमेशा, रिमेंबर। टेम्परेट साइक्लोन जो भी बनेगा यहाँ पर बनेगा, जहाँ पर पोल एरिया का ठंडा हवा आ रहा है और सब इक्वेटोरियल एरिया से गर्म हवा आ रहा है। जब गर्म हवा ठंडा हवा मिलता है तब टकरा के दोनों मिक्सअप नहीं होता है, एक दूसरा को टकराता है और बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द एयर ये घूमना शुरू हो जाता है, ऊपर जाता है। दैट इज नोन एज द टेम्परेट साइक्लोन। आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो यहाँ पे जनरली टेम्परेट साइक्लोन बनेगा एंड द एयर विल स्टार्ट राइजिंग अप। फिर यहाँ से राइज अप हो रहा है, फिर यहाँ से राइज अप हो रहा है, फिर यहाँ से राइज अप हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा? फिर लो प्रेशर बनेगा। अब तो रीचिंग टू सर्टेन हाइट। यहाँ तो जनरली इतना रेनफॉल, टेम्परेट साइक्लोन का कैरेक्टरिस्टिक है कि रेनफॉल बहुत धीरे धीरे कम कम होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, ड्रिजलिंग होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये एरिया लोग में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा यहाँ पर, ये वाला एरिया लोग में ना, सॉरी ये वाला एरिया लोग में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा वो बहुत ज़्यादा बारिश होगा, यहाँ पे कम बारिश होगा, ठीक है। तो यहाँ आने का बाद में दो ब्रांच डाइवर्ट होगा, एक ब्रांच इस तरफ जाएगा और एक ब्रांच यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यहाँ क्लियर है ये सब? कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक बार अच्छा से देख लो। नाउ लिसन केयरफुली। ड्राइंग इसका आप क्वेश्चन उठा के देख लो क्लिम्स मेंस में, सीधा आपको ड्रॉ दी गिव ए ब्रीफ ऑन दी प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ सुइटेबल डायग्राम बोल के 10 मार्क का सीधा आता है, 5 मार्क का सीधा क्वेश्चन आता है। तो डायग्राम आपको एक साइड का बनाना है, दूसरा अभी के लिए बना सकता है, लेकिन टाइम बचाने के लिए इसमें ज़्यादा ज़्यादा आपको 1 मिनट का डायग्राम चाहिए, ओनली 1 मिनट भी नहीं लगता है। हम जब बनाएगा तो हम बिफोर 1 मिनट में हम ख़त्म कर देता है, अगर आपको सीधा याद है। इसका बाद बाकी को आप थोड़ा लिखना है, इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर लो हाई प्रेशर बेल्ट बोल के लिखना है। वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो 5 मिनट का हुआ तो डायग्राम ऐसा बनाना है, ये बना सकता है तो दूसरा डायग्राम, ठीक है। लेकिन डायग्राम में सीधा 0 मार्क कब मिलता है? सीधा 0 मार्क अगर आप इक्वेटोरियल, ये वाला इक्वेटोरियल बेल्ट का जो कहाँ है इक्वेटोरियल, हाँ ये वाला इक्वेटोरियल का ये वाला, दिस इज योर 1 जोन, दिस इज 1 जोन। ये दोनों का हाइट, तीनों का हाइट को आप सेम बना दिया तो सीधा आपको 0 मिल जाएगा। रिमेंबर, एयर राइजेस मोर एट द इक्वेटोरियल एरिया, ज़्यादा हाइट में जाता है। एयर राइजेस लेस इन द पोलर एरिया। तो एग्जामिनर आपको क्या लिखा है नहीं लिखा है नहीं देखेगा, सीधा एग्जामिनर इसका डायग्राम को देखेगा, इसको चेक करेगा ये दोनों तीनों का हाइट सेम है क्या। बिकॉज आई हैव सीन इन मेनी ऑफ द नोट्स वेयर द स्टूडेंट हैव ड्रॉन द डायग्राम, तीनों का इक्वल बना देता है, एग्जामिनर सीधा आपको 0 दे देगा। गेटिंग माय पॉइंट? डायग्राम को सुन देगा, लिखा नहीं लिखा वो देख चेक भी नहीं करता, वैसे डायग्राम देख लेता। तो दिस इज द परफेक्ट डायग्राम वेयर दिस इज लिटिल हायर, दिस इज लिटिल शॉर्ट। इससे चाहे तो और थोड़ा शॉर्ट बना सकता है और इसको और भी शॉर्ट बना सकता है, लेकिन तीनों का हाइट बराबर नहीं होना है। आर यू क्लियर अबाउट दिस? नाउ लिसन केयरफुली, दीज टू, दिस वन and these 2, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलेगा? इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट, और इसको बोलेगा क्या बोलेगा? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये लो प्रेशर बेल्ट है ना,
equatorial low pressure belt, polar high pressure. These two belt is formed because of the temperature, isn't it? Here because it is extreme temperature, extreme insolation is received, therefore it rises up. Just opposite here, this pressure is formed because of the extreme cold temperature. Therefore these two belts, equatorial low pressure belt and polar high pressure belts, are known as thermally induced pressure belt. क्या बोलता है? Thermally induced pressure belt. So therefore we have how many thermally induced pressure belt? How many thermally induced pressure belt are there in a globe? 2. Very good. How? 2. 1, 2, 3 होगा ना. इक्वेटर में एक हो गया थर्मली इंड्यूस, पोलर तो 2 पोलर है ना, तो देयरफॉर देयर आर 3 थर्मली इंड्यूस 3, 1 इक्वेटोरियल एंड 2 पोलर हाई. बस. नेक्स्ट, दीज 2 प्रेशर बेल्ट, दिस subtropical high pressure belt, subpolar low pressure belt, these 2 belt are not formed by the heat. गर्म का कारण से नहीं हुआ है. These 2 are formed because of the what called forcefully. Here it is coming. They are forced to rise up. There is no other choice. They were forced to rise up, and here they are forced to come down. ठीक है. These 2 pressure belt, which is forced to come down or forced to rise up, ना, they are known as dynamically induced pressure belt. Dynamically induced pressure belt, in other words, we can also say like that. ठीक है. Those pressure belt which are formed not by the thermal are known as dynamically induced pressure belt, or those pressure belt which are formed due to the forceful rising up or the coming up, they are known as the dynamically induced pressure belt. So we have here dynamically induced pressure belt. Now you tell me, how many dynamically induced pressure belt are there? You. 2. Very good. Total how many dynamically induced pressure belts are there? ये तो साउथ में हो गया ना, नॉर्थ में हो गया. इधर भी तो होगा ना, तो इधर का 2, इधर का 2, 4 होगा ना. आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेस्ट ऑफ द लेवलिंग, ठीक है, बाकी ज़रूरत नहीं. हेडली सेल, फेरल सेल, ये अभी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है. किताब में आपको लिखेगा यहाँ में हेडली सेल, फेरल सेल वगैरह, वो इतना ज़रूरत नहीं है. अभी आपको जस्ट प्रेशर बेल्ट का कंसेप्ट समझना है. नाउ यू डू वन थिंग, ये हम बना दिया, अब दोनों साइड का बनाओ, जल्दी जल्दी ख़त्म करो. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. कई किताब में 25 तो 30 लिखा है, कई में 35 लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे कि हम इसमें 5 डिग्री का यूज़ किया तो 60-65, इसलिए हम 30. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. नहीं, ऐसा है. लुक, when this is intratropical convergence zone, when the insolation will shift to the north, this whole will shift आगे जाएगा, except pole. Polar area will never change. Polar area will always remain here. But when the sun's insolation in the summer season, when the sun's direct insolation will shift to the north, are you clear about this? The whole pressure will be shift toward the. This is the general when the equinox, वो समय का है. लेकिन जब summer solstice आएगा, this will be there. That is the reason why somewhere it is 35 is written, 20 is written. It doesn't make any sense. Na? So what happened? This will become 70 to 75. This will become 30 to 45. इस तरह से शिफ्ट होगा. विंटर हो जाएगा तो फिर शिफ्ट होगा.
दिस इज द इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, तो हम बोलेगा इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन coincide with the Tropic of Cancer in the summer, ठीक है, and this will sit somewhere। समझ में आएगा ना? गोल है, परफेक्ट बनाया। दिस इज योर 0 डिग्री इक्वेटर। नाउ मार्क 10 डिग्री। This is your 10 degree north, 10 degree south, 30 to 35, 25 to 30। $60 to $65, $80 to $90। ठीक है, this is your equatorial low pressure belt। ठीक है, equatorial low pressure is also known as doldrum। it is known as the doldrum। ठीक है, doldrum means confusing, मतलब यहाँ विंड मूवमेंट नहीं होता है, बोलता है कन्फ्यूज। देखो विंड मूवमेंट, वाई विंड, इसको वाई इट्स कॉल्ड डोल्ट्रम, बिकॉज हियर विंड, देयर इज अ नो विंड। डू यू फाइंड विंड हियर? देयर इज एब्सेंस ऑफ द विंड, नो? यहाँ पे एब्सेंस ऑफ द विंड है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ द विंड है। ठीक है, व्हेन इन अर्लियर डेज द पीपल यूज्ड टू नो द डायरेक्शन ऑफ एनी प्लेस बाय द डायरेक्शन ऑफ द विंड ना। अभी का जैसे तो ज्योमेट्री तो नहीं था, तो दे फ्लैग एंड सी द फ्लैग एंड विल से विल इफ इट इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विल से इन दिस डायरेक्शन ना। तो देयर फॉर इफ देयर इज अ एब्सेंस ऑफ द विंड, सो देयर इज अ डायरेक्शन लेस, पीपल आर कन्फ्यूज्ड हियर। दैट इज द रीजन वाई दिस प्लेस इज नोन एज द डोल्ट्रम। समझ में आ गया? इसको डोल्ट्रम भी बोल। डोल्ट्रम का मतलब है कन्फ्यूजिंग होना। ठीक है, हीट इज देयर, एब्सोल्यूट हीट इज देयर, air will rise up, but we cannot draw like this। ऐसे तो नहीं बना सकता। so how we will draw here ना, thick, we will draw this। अभी इसमें देखो, अरे क्लाउड कहाँ फॉर्मेशन होगा? यहाँ होगा, और आप फिर हमको बोलेगा बारिश तो यहाँ होना है, बोलेगा ना, आपको गाली देगा। आप क्या किसी लग ड्राइंग, यहाँ तो टिक था ना, यहाँ तो टिक लगा है, तो यहाँ फिर कैसे हो रहा है? तो बारिश तो इधर होना है, इधर नीचे जाना है। सो डोंट बी कंफ्यूज, दिस लाइक दिस ओनली। हाँ, सो आफ्टर दिस द एयर विल this direction,
ये वाला, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, ठीक है. एंड वन ब्रांच टू द नॉर्थ, वन ब्रांच टू द साउथ. इट विल कम डाउन, इट विल डिसेंट डाउन. ये एक ब्रांच हो गया और यहाँ पर भी कम डाउन, इट विल कम डाउन. और यहाँ पर भी बना लेगा, इट विल कम डाउन, इट विल कम डाउन. नाउ आफ्टर कमिंग डाउन there will be a two, one in this direction and another in this direction, one in toward the equator, one toward the north. ठीक है. Now we will take the example of the pole. pole का the air will descend, the air will descent. Everywhere the air will descend. Finding no other way, it will go in this direction, one in this direction. Now these two, this is bit warmer air, this is cold air. They meet together and they will be forced to rise up, they will forced to rise up. Okay. After reaching certain height, one branch will go in this direction and one branch will go in this direction. ठीक है. This is your equatorial low pressure belt and this is your subtropical high pressure belt. Subtropical high pressure belt. Here again there is no wind. This is also known as horse latitude. ठीक है. This is subpolar low pressure belt, subpolar low pressure belt. This is polar high pressure belt. ठीक है. This is also known as horse latitude. Again there is the absence of the wind here. This is the reason. देखो, we have the North America here, ना? We have the UK here and Europe here. Now North America and the UK, between the North America and UK we have the Atlantic Ocean. In earlier days there used to have a many trade between the Europe and the North America, and the one of the major trading commodity was horse, or even the trader always used to take their horse with them. Now what happened when they travel and they come to this area, high pressure area. Now because of the high pressure area and the absence of the wind, their ship stuck at the same place. Now earlier what happened, they used to have a ship which ठीक है go with the help of the wind. Here there is no wind first of all, and high pressure is there, therefore their ship is stuck in the sea. Now what they do, though they tie the horse in the ठीक है neck and they throw the horse, then ship become lighter, ठीक है, then they can move the ship. Therefore this horse latitude name was given. Are you clear? ध्यान दो. हाँ, ये छोटा है, ये इससे भी छोटा है. Now let's try to do this wind. This wind, you have to put the wind, means this trade wind. This is your trade wind.
Now trade wind, we will do this tomorrow, next lecture. But this is trade wind, this is also trade wind. We will tell you why it is known as the trade wind and all this in the next lecture. But for as of now, the direction of the trade wind is from high pressure to low pressure. Remember, high pressure to the, here the two wind will go, one from high pressure toward the pole area, यहाँ से फिर ये दो निकलेगा ना, ये देखो दो है ना, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है ना. दिस वन विंड इज यहाँ से निकलेगा और एक विंड यहाँ से निकलेगा. आर यू क्लियर अबाउट दिस? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट ड्रॉ दिस. नाउ देयर इज अ वन लॉ or theory na, this is known as the or the force known as the Coriolis force. Coriolis force is the force, an imaginary force which deflect the movement of anything. It may be ocean current, it may be wind, or it may be any other thing. If it is in a movement, if it is in a move, then it will deflect the any moving object in the northern hemisphere toward the right and in the southern hemisphere toward the left. उसको हम फेरल लॉ भी बोलता है, हम नेक्स्ट क्लास में करेगा. लेकिन अभी के लिए कहने का क्या मतलब है, इट डिफ्लेक्ट द रोटेटिंग अर्थ, डिफ्लेक्ट द मूविंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट डिफ्लेक्ट द मूविंग ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट ना, in the southern hemisphere in the direction of the movement of the object. So for example, if the wind is coming in the toward the equator, it means it is in the northern hemisphere. Then in the northern hemisphere it should deflect toward right na, toward the right na. In simply this is a Farrell law, we will see it tomorrow. Therefore the air, instead of going direct or perpendicular, it will deflect in the right. Is it deflecting in the right? Remember I said the object will deflect to right in the northern hemisphere in the direction of the object. The direction object is this, always direction of the object. Direction object ऐसे होने से इस तरफ हो जाएगा. Now the direction object is this, so therefore the wind will deflect in this direction. Right है ना, it is the right, मतलब ऐसा खड़ा होना पड़ेगा आपको. This is right na. Now similarly here in this the wind is from northern hemisphere. wind का डायरेक्शन देखो राइट में है, it is deflecting in the right. ठीक है, अभी यहाँ से जो विंड निकलेगा इसका डायरेक्शन ऐसे देखना है, उसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा. ये भी राइट डिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट डिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट डिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है, दिस इज नोन एज द ट्रेड विंड. दिस इज नोन एज द वेस्टर्लीज बिकॉज इट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट. ओरिजिनेट को डायरेक्शन लेता है हमेशा, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, वेस्टर्लीज. इट इज नोन एज द ईस्टर्लीज और द पोलर ईस्टर्लीज बिकॉज ईस्ट से आ रहा है. ठीक है, वी विल सी इट टुमारो. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी इसका विंड को देखना है. लेकिन अभी वाई आई वॉन्ट यू टू, आई जस्ट ड्रॉ बिकॉज आई वॉन्ट टू रिलेट दिस विंड. दिस विंड इज दिस, दिस विंड इज दिस, दिस विंड इज दिस ना. हल्का सा समझ में आ गया. तो इसका विंड सिस्टम को हम लोग बाद में करेगा नेक्स्ट लेक्चर में. नाउ आवर कंसर्न इज द प्रेशर बेल्ट. तो वी विल राइट डाउन how many pressure belt are there, how many dynamically induced pressure belt are there, how many thermally induced pressure belts are there na, that we will write. Just take it, write down. pressure belt of the world, या तो ज़्यादा ग्रासेस हो सकता है, स्टेपी टाइप ऑफ ग्रासेस, ट्रॉपिकल ग्रासेस ना, इस तरह होगा. लेकिन जहाँ लो प्रेशर का कारण से ऊपर जाके बारिश होगा वहाँ पे आपको वेजिटेशंस मिलेगा. तो दिस इज द एरिया वेयर सफिशिएंट इंसोलेशन इज थ्रू आउट द ईयर. थ्रू आउट द ईयर इवेपोरेशन विल बी देयर. ठीक है, थ्रू आउट द ईयर क्लाउड फॉर्मेशन विल बी देयर, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल विल बी देयर. सो फॉर ए प्लांट टू
grow better, it need insulation first, it need water. ठीक है, तो here insulation is available, here water is available, so therefore the most luxurious type of the vegetations, ठीक है, इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दुनिया का मोस्ट डेंस फॉरेस्ट यू विल फाइंड ओवर हियर। तो वेजिटेशन को भी अब आराम से मालूम हो सकता है। सिमिलरली अभी इसमें यू सी ऑन दिस हियर द विंड इज डिसेंडिंग, देयर विल बी नो क्लाउड फॉर्मेशंस, नंबर 1, ठीक है। विंड इज कमिंग डाउन, तो देयर इज नो चांस ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन। इफ क्लाउड इज नॉट फॉर्म, rain will be not there. If rain is not there, then at this area there will be chances that it is a very arid region, dry region. Therefore the most important desert of the world ना your, ठीक है, Arabian desert, Thar desert ना, Namib desert, Mojave desert located here. Similarly here you will find Atacama desert ना, या ठीक है, सोनाराम डेजर्ट, जो भी अफ्रीका में कलाहारी डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। सो दिस आर द एरिया। समझ में आ गया? यू कैन इजीली डू दैट राइट नाउ। शिफ्टिंग ऑफ आईटीसी जेट, शिफ्टिंग ऑफ द आईटीसी जेट, फुल स्टॉप के बाद लिखो विथ शिफ्टिंग ऑफ आईटीसी जेट ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ 2 डिफरेंट विंग सिस्टम, ब्रैकेट में लिखो वार्म वेस्टर्लीज, ये वाला वार्म वेस्टर्लीज एंड कोल्ड पोलर ईस्टर्लीज ना, ये दोनों मिल रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो दोनों अलग अलग, एक गर्म एक ठंडा। हम क्या बोला है, जब एक गर्म और एक ठंडा हवा मिलता है तो क्या बनाता है, फ्रंट बनाता है, और वही फ्रंट जब मिलके ऊपर जाता है, उठता है, तो उसको क्या बोलता है, गर्म हवा जो मिलता है, दोनों मिलता है ना, तो फ्रंट एक्चुअली क्या होता है, ये ठंडा हवा आ रहा है ऊपर से, ये गर्म हवा आ रहा है, जब दोनों मिलता है तो डायरेक्ट नहीं टकराता है, दोनों मान लो ऐसे करेगा और ये इस तरह से दोनों, एक ये होता है स्टेजेस होता है, वो मेंस में हम लोग पढ़ाई करता है, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज, ऐसे करके दोनों का बीच में मिक्सअप नहीं होता है, डायरेक्ट मिक्सअप, दोनों एक दूसरा के लिए एक बाउंड्री क्रिएट करता है। यहाँ में ये बाउंड्री को हम लोग बोलता है फ्रंट। फ्रंट का मतलब ही आप मालूम है, फ्रंट का मतलब बाउंड्री को, बॉर्डर को ही बोलता है। इसके बाद ठीक है, तो फ्रंट बन जाता है। आफ्टर फ्रंट और एक स्टेज आगे आ गया तो जो कोल्ड वाला विंड, जो वार्म विंड को अपलिफ्ट करके ऊपर की ओर ऐसे करके जाता है, तो हम क्या बोला है, ये दोनों जब मिलता है तो उसको क्या बोलता है, फ्रंट, और दोनों जब ऊपर की ओर जाता है तो क्या बोलता है, बताइए तो तेरा पहले आप याद रखो हमेशा, एयर, जो भी एयर जो ऊपर जाता है साइक्लोन बोलता है, और जो भी एयर नीचे आता है एंटी साइक्लोन बोलता है। यहाँ में जो भी एयर ऊपर जा रहा है ना, इक्वेटोरियल से जा रहा है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, वो सब साइक्लोन है। सिंपल साइक्लोन का मतलब है द एयर विच इज़ गोइंग अप, ऑल एयर विच इज़ गोइंग अप इज साइक्लोन, ऑल एयर विच इज़ कमिंग डाउन इज एंटी साइक्लोन, ठीक है। वो अलग बात है कि अलग अलग रीजन में इंटेंसिटी अलग हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मैक्सिकन वाला एरिया में टेम्परेचर साइक्लोनिक पावर स्ट्रॉन्ग होता है, इंडिया का ईस्टर्न साइड में साइक्लोन ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इफेक्ट होता है, उसका अलग अलग नाम देता है, वो अलग बात है। जैसे कि टाइफून हो गया, वैली हो गया, साइक्लोन हो गया, वो अलग बात है। लेकिन इन ज्योग्राफी नॉर्मली एयर विच इज़ गोइंग आउट इज ए साइक्लोन, मतलब एयर घुर के जा रहा है तो साइक्लोन है, और एयर कभी सीधा नहीं जाता है क्योंकि अर्थ रोटेट है, तो इसलिए हमेशा एयर रोटेट कर जाता है। एनीवे तो हम बोल रहे हैं दोनों मिलता है तो फ्रंट, दोनों ऊपर जाता है तो साइक्लोन। लेकिन क्या साइक्लोन होगा, क्योंकि ठंडा एरिया में है तो टेम्परेट साइक्लोन होगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बेल्ट ऑफ फ्रंट्स। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग हम जस्ट नॉलेज चेक करने के लिए बोल रहा है।
why does in equatorial area, why does intertropical convergence zone, even though here also two winds are meeting, why does here no fronts are formed? यहाँ front की formation नहीं है. Yes, simple, because here the trade wind, they are coming from subtropical high pressure bed, which is a warm air, तो वार्म एयर मिलेगा तो डायरेक्ट मिक्सअप हो जाता है वो लोग ना, अलग अलग होने से तो तब बाउंड्री क्रिएट करेगा ना. आप सब मान के चलो एक डिस्ट्रिक्ट का है तो उसमें क्या ज़रूरत है, सब मिक्सअप हो जाएगा. लेकिन एक मान लो कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट का है तब तो दोनों के बीच में बाउंड्री क्रिएट होगा ना, इधर जाओ अलग अलग.